بسم اللہ الرحمن الرحیم. LLB English Short Stories. The Lady in the Looking Glass, A Reflection. This story is written by Virginia Woolf. Virginia Woolf. The lady, ایک خاتون لوکنگ گلاس میں، آئینے کے اندر ایک عورت. ورجینیا وولف استادوں کے لیے لکھتی ہے، استاد رائٹرز کے لیے لکھتی ہے. عام کاری کے لیے کم لکھتی ہے، وہ رائٹرز کے لیے زیادہ لکھتی ہے. نیو ٹیکنیکس وہ انٹروڈیوس کراتی ہے. فیمس ہے اور فورموسٹ ماڈرنسٹ ہے، امریکن ہے، 20th سینچری کی ہے. پیدا ہوئی ہے 1882 میں لنڈن میں، اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1941 کے اندر. اور شی کمٹ سوسائڈ، اس نے سوسائڈ کی تھی. دریا کے کنارے پر اپنا کیپ اور اپنی سٹک چھوڑ کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی. اس سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے نام لیٹر بھی لکھا تھا کہ میرے ذہن کے اندر کچھ چیزیں اود کر رہی ہیں. یہ اس طرح کی رائٹر ہے جو بعض اوقات بالکل ان ڈریس ہو کر کپڑے اتار کر مارکیٹ میں آ جاتی تھی. کریکٹرز آف دس اسٹوری، دیر آر اونلی 2 کریکٹرز. ون از نریٹر کہانی بتانے والا، یعنی کہ وہ وولف خود ہے، ورجینیا وولف خود. سیکنڈ کریکٹر از ایزبیلا ایزابیلا نہیں، ایزبیلا رچ سپنسٹر کہتے ہیں بیچلر کو، جس نے شادی نہ کی ہو. جس عورت نے بڑی عمر میں پہنچ گئی اور شادی نہ کی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں سپنسٹر. یہ فل سائز ٹریولر ہے، سفر کرنے والی ایک خاتون ہے. ایزبیلا. 2 کریکٹر، ورجینیا وولف ایز اے نریٹر اور ایزبیلا. ہوا یہ ہے کہ نریٹر ورجینیا وولف کسی کے گھر میں جا کر بیٹھی ہے، اور اس گھر کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھی ہے، اور پھر ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹھی ہے. ڈریسنگ روم کے اندر جب ورجینیا وولف بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت ایزبیلا سامنے آئینے کے سامنے ٹھہری تھی، اور وہ آئینے کے آگے سے ہٹ کر وہ باہر لان میں چلی گئی ہے کچھ پھول توڑنے کے لیے. گھر کی ساری ڈیزائننگ، کلرز، لائٹس، ڈریسنگ ٹیبل، اور وہاں پر رکھے ہوئے دور دراز سے آنے والے ڈیفرنٹ ماڈلز، کوئی مجسمہ، کوئی ڈیفرنٹ چیز، جس سے پورے کمرے کو آرائش کیا گیا تھا. ورجینیا وولف دیکھتی ہے اس آئینے میں، اور آئینے کے اندر وہ پورے کمرے کا ریفلیکشن دیکھتی ہے. اور پورے کمرے کو جب اس آئینے کے اندر سے دیکھتی ہے تو ہر ایک چیز پر غور کرتی ہے اور سوچتی ہے کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے کوئی بھی ایک پہلو پکڑ لیا جائے، کریکٹر خود بخود ہی واضح ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ڈریسنگ بتاتی ہے کہ یہ اچھا میل جول رکھنے والی ایک سوشل عورت ہے، اور اس کے بناؤ سنگار سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پیشنیٹ قسم کی لیڈی ہے. اس کو بہت سارے لوگوں کو اس سے محبت ہوگی اور یہ ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہوگی. یہ ایک اعلیٰ درجے کی ایک ٹریول کرنے والی اور بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت ہے. یا پھر ایک عورت کے اندر کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ عورت کے، اب جیسے ایزابیلا ہے، ایزابیلا کے مائنڈ کے اندر کئی ڈراز ہیں، کئی الماریاں ہیں جس کے اندر اس کی سوچوں کے خزانے ہیں. کیسے کنٹینٹ اس کی روح کے اندر ہوں گے ایزابیلا کی. ورجینیا وولف ایز آ نریٹر وہاں بیٹھی یہ سوچ رہی ہے، اور پھر وہ اسی آئینے کے اندر باہر دیکھتی ہے، باہر باغیچے کو، جو کہ سٹیٹک گرین نظر آتا ہے، رکا ہوا ٹھہرا ہوا گرین نظر آتا ہے.
वर्जीनिया वुल्फ एक्सपेक्ट करती है कि ये लेडी बहुत बनाव संगार वाली और बहुत शाइस्ता और बहुत बन ठन के रहने वाली अमीर ज़ादी है, और इसके जहन में मोहब्बत भी पलती होगी और इसके जहन में बहुत सारे और भी ऐसी सोचें होंगी, थॉट्स के पैक्स होंगे इसके जहन के अंदर। अज़बेला फिर अंदर दाखिल होती है, आती है और वो आईने के सामने बैठ जाती है, वो फूलों को अपने ऊपर एडजस्ट करती है और अपने बनाव संगार को देखती है और मुस्कुराहट देती है। और उसी असना में या उससे पहले, अज़बेला के आने से पहले एक पोस्टमैन आया है और उसने कुछ लेटर्स डिलीवर किए हैं, और लेटर्स उसने इस पाइल ऑफ लेटर्स था, लेटर का ढेर था। जब उसने टेबल पर वो लेटर छोड़े हैं तो वर्जीनिया वुल्फ ने सोचा था कि ये लेटर मार्बल की स्लेट्स की तरह है, और इन लेटर्स के अंदर पता नहीं कैसी कैसी बातें होंगी, और जो इस औरत के तमाम तर शख्सियत को वाज़े उजागर कर देगी। अगर ये लेटर भी पढ़ लिए जाए तो अज़बेला डिक्लेयर हो जाएगी कि अज़बेला क्या सोचती है, क्या कहती है और किन लोगों से इसका ताल्लुक़ है। जब अज़बेला अंदर आकर बैठ गई है, अज़बेला बड़ी सिंपल सी बातें करती है। अज़बेला बताती है वो कहीं भी नहीं जाती और तन्हाई पसंद है। अज़बेला को किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी को अज़बेला से मोहब्बत नहीं है। अज़बेला एक सादा ज़िंदगी गुजारती है और वो वैसे एक आम औरत है जैसे कोई आम औरत होती है, और उसके जहन में कोई बड़े बड़े ख़यालात के ख़जाने नहीं छुपे हुए। और वो जो लेटर्स सामने टेबल पर रखे हुए हैं वो लेटर सारे के सारे बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस बिल और दूसरे बिल्स हैं। तो दैट इज़ अ रियली स्प्लिट समथिंग, स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी। एक आदमी, एक नरेटर वर्जीनिया वुल्फ के परसेप्शन में वो औरत डिफरेंट है, उसको उसने डिफरेंट अंदाज से देखा है। एट द सेम टाइम एक्चुअली जो पर्सन था वो सामने आया तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ और थी। इसे हम कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। सामने से तो इंसान नज़र आ रहा है कि बहुत शान और शौकत वाला है, बड़े वक़ार वाला है, बड़ी रौनक वाला है, बड़े मेल जोल वाला है, लेकिन अंदर से देखो तो इंसान तन्हा होता है, बेबस होता है, अफसुर्दा होता है, तन्हाई पसंद होता है, और वो एक सिंपल इंसान होता है। सो दैट इज द स्प्लिट ऑफ द पर्सनैलिटी। अब ज़रा इसी कंट्रास्ट को आप इस अंदाज में देखें। एक मर्तबा स्टार्ट में वर्जीनिया वुल्फ अपनी स्टोरी में कहती है, अगर आप स्टोरी पढ़ें, शी कुड नो लॉन्गर एस्केप, वो ज़्यादा देर तक बच नहीं सकती। वन मस्ट प्राइज हर ओपन, एक आदमी उसके ख़जाने को खोल सकता है। किसके? अज़बेला के जहन के ख़जाने को आराम से खोल सकता है। विद द फर्स्ट टूल दैट केम टू हैंड, पहले ही टूल के साथ, पहले ही औजार के साथ जो हाथ में आ जाए। यानी कि अज़बेला की शख्सियत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके अंदर के कंटेंट्स को, प्राइजेस को, ख़जानों को देखने के लिए कोई लंबी चौड़ी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी पहलू को पकड़ लीजिए और अज़बेला परत दर परत खुरदती जाएगी। आसान है। और नरेटर ने वहाँ बैठ के ऐसा ही एज्यूम किया, अंदाज़ा लगाया, किसके बारे में? अज़बेला के बारे में, जो कि वो नहीं थी। फिर मिड में आकर राइटर क्या कहती है? ब्रिंग्स इन सम न्यू एलिमेंट्स विच जेंटली मूव्स एंड अल्टर्स द अदर ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये तो कुछ नए एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। मैं आईने के अंदर से जो चीज़ें मुझे ड्रेसिंग रूम की नज़र आ रही थी, सोफ़ा, लाइट्स, वहाँ पर रखे हुए डेकोरेशन पीस, और वहाँ पर सारी कर्टन्स, मैनेजमेंट, ड्रेसिंग, ये सारी की सारी अपना रंग बदल रही हैं, अपने व्यूज़ बदल रही हैं, अपने रिफ्लेक्शन बदल रही हैं। इसका मतलब है आईना भी झूठ बोलता है। आईने के अंदर जो चीज़ नज़र आती है वो वैसे तो वाज़े नज़र आ रही है अपीयरेंस में, लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ है ये नहीं बता रहा आईना। इसका मतलब वर्जीनिया वुल्फ या कोई भी इंसान दूसरे इंसान को सामने से तो देखता है, अपीयरेंस में जो चीज़ देखकर वो जो एक मशहूर इडियम है, सीइंग इज़ बिलीविंग, कि सीइंग इज़ बिलीविंग,
देखना ही बिलीव करना है। जब हम सामने किसी करेक्टर को देखते हैं तो देख कर हम जो उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं तो वो टोटल अंदाज़ा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बल्कि उस शख्स के अंदर कुछ और भी कंट्रास्ट भी हो सकता है। ओहो, हम किस बहस में पड़ गए हैं। अच्छा, उसके बाद राइटर कहती है कि इस रिफ्लेक्शन के अंदर, आईने के अंदर ही चीज़ें अपना रिफ्लेक्शन, अपने मूड्स, अपनी नीयत, अपने ही कंटेंट्स बदल रही है। और जब वो एज़बेला अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती है? Here was the woman herself, अब वो औरत खुद अंदर आ गई है। She stood naked in that pitiless light, वो तो इस बेरहम रोशनी के अंदर नंगी तड़ंगी ठहरी हुई थी, बिल्कुल नंगी ठहरी हुई थी। And there was nothing, और कुछ भी नहीं था। नंगी ठहरने से मुराद ये नहीं है कि वो औरत वहाँ पर नंगी ठहरी हुई थी एज़बेला। कहने का मतलब है जब ये औरत मेरे सामने आकर ठहरी और इसने मुझसे जब गुफ्तगू की और जब मैंने इसको नई रोशनी के अंदर देखा और ऑब्जर्विंग और हकीकत की वो बेरहम रोशनी के अंदर मैंने देखा, अपनी ही आँखों की रोशनी से, हकीकत की बेरहम रोशनी से मैंने देखा, और वो तो बिल्कुल नंगी तड़ंगी ठहरी हुई थी। एक ह्यूमन बीइंग, इंसान अंदर से निकल आया। And there was nothing, कुछ भी नहीं था। Nothing, कुछ भी नहीं था। Nothing, कुछ भी नहीं था। एज़बेला was perfectly empty, एज़बेला तो सीधी सी सिंपल सी एक औरत थी, कोई इल्म के, कोई उसके अंदर सोच के खजाने नहीं थे। She had no thoughts, इवन थॉट्स भी नहीं है। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी नहीं है। शी केयर्ड फॉर नोबडी, किसी की उसे फिक्र भी नहीं है, किसी की तरफ उसका ध्यान भी नहीं है। एज फॉर हर लेटर्स, जहाँ तक उसके खतूत का ताल्लुक है, मैंने सोचा था कि खतूत के अंदर कोई मोहब्बत भरी बातें होंगी, झगड़े होंगे, मसाइल होंगे। दे वर ऑल बिल्स, ये तो बिजली के बिल थे, गैस के बिल थे। लुक एज शी स्टूड देयर, देखो यहाँ ठहरी है, ओल्ड एंड एंगुलर, बूढ़ी और स्पॉट सीधी, वीन्ड एंड लाइन्ड, खून से भरी हुई और फिर सामने सीधी, विद हर हाई नोज एंड हर रिंकल्ड नेक, अपने वेल प्रोपोर्शन्ड ऊंचे उभरे हुए नाक के साथ और अपनी गर्दन पर तमाम तर रिंकल झुर्रियां लिए हुए, एक आम औरत की तरह। शी डिड नॉट इवन ट्रबल टू ओपन देम, वो तो लेटर्स को खोलने की जहमत ही नहीं कर रही। तो दैट इज एक्चुअली इनकशाफ, ये है इनकशाफ जो राइटर को हो गया है। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस स्टोरी के अंदर राइटर वहाँ बैठी ड्राइंग रूम में जो अंदाज़ा लगाती है उस घर कमरे को देखकर एज़बेला की पर्सनैलिटी का, वो शान और शौकत वाला होता है। जब एज़बेला से वो प्रॉपर बात करती है तो एज़बेला उससे कंट्रास्टिव होती है, डिफरेंट होती है और सिंपल एक ह्यूमन बीइंग होती है, वो कोई फ़िलासफ़र नहीं होती जिस तरह के ये राइटर बैठी सोच रही थी। दिस वाज अ स्टोरी। स्टोरी का वजूद बहुत पतला, छोटा, तिनके की मानद है, लेकिन स्टोरी का दिल, दिमाग, इसके आर्म्स और इसका मुंह बहुत बड़ा है। बिकॉज दिस इज अ स्टोरी रिटन इन द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम में लिखी गई है। और पिछली दफ़ा टू द लाइट हाउस पढ़ाते हुए मैं बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया था और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। मुझे मेरे स्टूडेंट अब वर्जीनिया वुल्फ नहीं पढ़ाने देते और मैंने बड़ी जुर्रत करके इसको पढ़ाया है। बस मैं इसे जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। बिफोर गोइंग टू थीम्स, फर्स्ट यू नोट माई नंबर 0333465535। दिस इज़ लेक्चरर MK Bhutta।